Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 1, Tracing Changes Through 1000 Years from class 7th History NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 1, Tracing Changes Through 1000 Years. From page number 9 we'll continue Region and Empire. Large states like those of the Cholas, Chapter 2, Tughlaqs, Chapter 3 or Mughals, Chapter 4 encompassed many regions. A Sanskrit Prasasti, see Chapter 2 for an example of a Prasasti, praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287, explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, that is Gauda, in the east to Ghazni, that is Ghazan, in Afghanistan in the west, and included all the South India, that is Dravid. People of different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat, apparently fled before his armies. तो रीजन एंड एम्पायर का मतलब होता है क्षेत्र और साम्राज्य. तो बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, जैसे चोल जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक जिसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे और मुगल्स के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. तो दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 से जो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया है 1287 बताया गया है कि उसमें उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के बारे में आप चैप्टर 2 में देखेंगे कि किस तरह से उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी कि उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल, यानी बंगाल को हम गौड़ कह सकते हैं, तो बंगाल से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजनी तक वो फैले हुए थे और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि जो द्रविड़ है वो भी आ जाता था. तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग जैसे गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात गियासुद्दीन बलबन की सेना से डरकर ये सभी के सभी लोग भाग जाते थे. हिस्टोरियंस regard this as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. तो इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं. अतिशयोक्ति का मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के वो लोग बता रहे हैं. साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं. Language and region. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. Sindhi, Lahori, Kashmiri, Dwasamudri in southern Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gujri in Gujarat, Malbari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Avdi in eastern Uttar Pradesh and Hindavi in the area around Delhi. तो 1318 में जो कवि अमीर खुसरो थे उन्होंने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी या आंध्र प्रदेश में है, गुर्जरी गुजरात में, मलबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास की जगहों में. Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. तो अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक दूसरी भी भाषा थी जो कि संस्कृत थी, जो कि विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी. यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते थे और आम जनता इसका इस्तेमाल नहीं करते थे. By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about this in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, table 1 in chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khalji and Mughal dynasties? तो 700 तक, यानी जो सन 700 तक कई जगहों
कि अपनी अपनी आप कह सकते हो जोग्राफिकल डायमेंशंस तय हो चुके थे और उनकी अपनी खुद की भाषा थी और उनकी खुद की सांस्कृतिक विशेषताएं जो थी वो एकदम स्पष्ट हो चुकी थी। तो चैप्टर 9 में आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये क्षेत्र जो थे ये विशेष शासक जो राजवंश कह सकते हैं, जो रूलिंग डायनेस्टी थी, उससे भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी ज़्यादा टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी जैसे चोल है, खलजी है, तुगलक है, मुग़ल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया था, अब फैल गए थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे ये लोग। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। तो एग्जाम्पल के लिए आप जब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की टेबल 1 को देखेंगे, आप उसे कंपेयर करेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो खलजी और मुग़ल वंश के शासन है वो कितनी अवधि यानी कितने समय तक चला, इसके बारे में हम देखेंगे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states, chapter 10. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. In the realms of governance, the management of the economy, allied cultures, and language. Through the 1,000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integrations without ever quite losing their distinctiveness. तो 18वीं सदी में मुग़ल वंश पतन के ढलान पर था। पतन यानी कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे, जिसे हम चैप्टर 10 में देखेंगे। लेकिन इतने सालों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल रही थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले थे। तो इन क्षेत्रों को विरासत में ये आप कह सकते हैं विरासत में ये मिला था। इस फैक्ट का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। तो इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से काफ़ी ज़्यादा अलग थी और कुछ एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। तो ऐसी परंपराएं हमें प्रशंसा, अर्थव्यवस्था को मैनेज करना, उच्च संस्कृति तथा भाषा के जो संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। लगभग 700 से लेकर आप 1750 के बीच के जो 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रकृति है एक दूसरे से कटकर काफ़ी अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, लेकिन इन सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। नेक्स्ट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, यानी कि पुराने और नए धर्म। The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. People belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency, regional, was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. तो इतिहास में जिन 1000 वर्षों की अगर हम पड़ताल करें तो इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। भगवान में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही पर्सनल लेवल पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप एकदम सामूहिक होता था। किसी भी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था धर्म और लोकल कम्युनिटीज़ के जो सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी काफ़ी सारा चेंजेस आप कह सकते हैं आता रहा। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. This included the worship of a new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priest and the dominant groups in society. तो आज हम जिसे हिंदू कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण काफ़ी सारे बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जो कि नए देवी देवताओं की पूजाओं, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और उनकी जो बढ़ती सत्ता थी।
Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा आदर सत्कार होता था उनका। वे इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं उनको प्रतिष्ठा की चाह थी, इन संरक्षकों को समर्थन देने लगे और समर्थन होने के कारण समाज में इनका जो दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। Now one of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. We will be learning about this and other tradition in chapter 8. तो इस युग में एक महत्वपूर्ण बदलाव जो था वो था भक्ति की अवधारणा के रूप में आया था। तो इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्यारे देवी देवता के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारियों के आप कह सकते हो कि पुजारियों के बिना जो भक्त है वो खुद पहुंच सकता था। तो इस विषय में आपको दूसरी परंपराओं के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जो है वो चैप्टर 8 में जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Now this was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in Him without regard to social background. तो ये वही युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों जो कि ट्रेडर्स थे और जो माइग्रेंट्स हैं उनके ज़रिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, यानी कि होली बुक मानते थे, और केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को वो लोग स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति का जो सोशल बैकग्राउंड हो वो कुछ भी रहा हो। Many rulers were patrons of Islam and the ulama learned theologians and jurists. And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, that is Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafis, mainly in India, and in theology and mystic ट्रेडिशंस। तो कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं, यानी उनको बचा के रखते हैं। हिंदू धर्म के जैसे ही इस्लाम के फॉलोअर्स भी अपने अपने धर्म को अलग अलग तरह से वो लोग व्याख्या करते हैं कि किस तरह का हमारा धर्म है। तो मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो इस्लाम के शुरुआती दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, विशेषकर भारत में हनफी और शफी जैसे सिद्धांत। तो ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। Now thinking about time and historical periods. Historians do not see time just as passing of hours, days or years, as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. तो समय और इतिहास के कालखंडों पर अब हम विचार कर रहे हैं। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को वो झलकाता था, और ये भी दिखलाता था कि विचारों और जो विश्वासों में कितना परसिस्टेंस है, कितना बदलाव आया है, कितने वो लोग वैसे के वैसे ही हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती थी।
यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ ज़्यादा और ईजी हो जाता है। In the middle of the 19th century, British historians divide the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British. This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy, society and culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज़ इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। एक तो हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। तो ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। तो इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की इस अपार विविधता को भी इग्नोर किया जाता है। Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. The histories you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. The histories you will be studying this year are often described as medieval. You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and the imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people. The development of Hinduism and Islam was major religions and the arrival of European trading companies. तो इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा था, यानी जो हिस्ट्री की बुक आपने पढ़ी थी, तो उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे हंटर गैदरर्स, पहले दौर के किसान जो लोग गांवों और शहरों में रहते हैं, और पहले के राज्य और साम्राज्य। तो इस साल आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मिडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें आपको किसानों के समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो गाँव में और वनों में रहने वाले लोगों के बारे में, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में भी ज़्यादा डिटेल जानकारी मिलेगी। Now this 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and the 18th centuries were quite different from the 8th or the 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. But of course we know this was not the case. तो भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी, आप कह सकते हैं, अलग रही। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना जो समस्याएं हैं उससे खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के समय भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का जो भाव है वो उससे जुड़ा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि मध्यकाल जो था वो रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। रूढ़िवादी का मतलब जो अपने जीवन में कोई भी बदलाव नहीं लाना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। During this 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. As you read this book, look out the signs of change and the historical processes at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year. Look out for changes and the continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. तो इन 1000 वर्षों के दौरान इस सब कॉन्टिनेंट के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे, यानी कि बदलाव आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो इस बुक को पढ़ते समय आप बदलावों के साइंस और इन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते जाएं
और जब भी पॉसिबल हो इस बुक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले साल जो आपने किताब पढ़ी है उसे करने की कोशिश करें कि जहाँ भी पॉसिबल हो ये देखिए कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी ये देखें कि और भी क्या कुछ बदला है और वैसा ही है कि नहीं। ये हमारा यहाँ पे हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा चैप्टर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।